Hello friends, this is Aswini Sarnarjun. Friends, we have discussed the topic vicarious liability under law of tort. And today we are going to discuss some important case laws on that very aspect or on that very topic. That is vicarious liability. Now question arises, what is vicarious liability? We have discussed that a person may be held liable only those acts if those are considered as tort, and only that person may be held liable who commits the tort. Or we can say a person may not be held liable if that person does not commit any tort. But vicarious liability is an exception of that rule. Means a person may be held liable who does not commit the tort. Even then, due to some conditions, due to some situations, that person may be held liable. And this concept is called vicarious liability. The vicarious liability is due to relationships. There are some relationships by which the vicarious liability arises. Relationships are if there is any relationship of principal and agent. If there is any relationship of principal and agent, then principal may be held liable for the tortious activity of the agent. Second relationship is partners of a partnership firm. If in a partnership firm any partner commits any tort, then all the partners will be held liable for that particular tortious activity. Third one is master and servant. And the most important aspect of this very topic is relationship of master and servant. Or we can say a master may be held liable for the act of servant, or we can say tortious act of servant. And this very concept depends upon two maxims. First one is Q facit per alium, facit per se. It means if a person does any work through another person, then in law it is said it is to be done by that person. Second one is respondent superior. Let the master or let the superior be responsible. These are the concepts, but for the vicarious liability between master and servant, the essential element is that tortious act must be committed by the servant, and that act must be committed in the course of employment. If the act is out of the employment, then master will not be held liable. We have discussed the all concepts of vicarious liability in our earlier lecture, and in our earlier lecture we have discussed some case laws. But today we are going to discuss some important case laws from this very topic. So we will discuss one by one. The first important case laws on this topic is Lloyd versus Grace Smith and Company. We have discussed this case in our earlier lecture, Lloyd versus Grace Smith and Company versus Lloyd versus Grace Smith and Company. This case is on fraud, and in this very case the defendant held liable. जैसा कि हम देख चुके हैं कि लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का केस जो है ये फ्रॉड पे था. ये कौन सा केस था? ये ओल्ड लेडी वाला केस था जिसमें उसके पास 2 कॉटेज थी और वो 2 कॉटेज से फायदा नहीं उठा पा रही थी. इसलिए उसने क्या किया, ये एक कंपनी थी ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, इसके पास वो गई और इन्होंने ये कहा कि हम जो है वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को मैनेज करना बताते हैं कि किसी प्रॉपर्टी से आप अच्छे से पैसा कैसे कमा सकते हैं. इसने जब उनसे एडवाइस ली तो उन्होंने क्या किया, बोले आप इसको बेच दीजिए. तो ओल्ड लेडी के हिसाब से तो सेल डीड बन रही थी, बट इसने क्या किया, जो भी यहाँ पे कर्मचारी था उसने गिफ्ट डीड बनवा ली अपने फेवर में. तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या इसके इस एक्ट के लिए जो इसका मास्टर है वो लायबल होना चाहिए. तो कोर्ट ने कहा कि हाँ
लायबिल होना चाहिए। अब देखिए इन सभी केसेस में whether the person or the defendant or the master will be liable or not, it depends upon whether the act has been committed within the course of employment or out of the course of employment. Two things must be established for the liability. First one is there must be a relationship of master and servant or principal or agent or partners in a partnership form. And the tortious activity has been committed within the course of employment. If two things has been established, then liability may be held. Now the second case is State Bank of India versus श्यामा देवी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, ये जो हमारा दूसरा केस है, ये केस भी जो है वो फ्रॉड पे है एक चीज। दूसरा, पहले में लायबिल बनाया गया था, दूसरे में नॉट लायबिल कर दिया गया था। नॉट लायबिल क्यों कर दिया गया था? बिकॉज द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द टॉर्चियस एक्टिविटी हैज बीन कमिटेड आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भाई बैंक वाला केस है जिसमें एक बैंक का कोई एम्प्लॉय था, उसका फ्रेंड उसको अपनी फ्रेंडशिप की कैपेसिटी में उसके घर पे जाके जो है दे के आ गया था कुछ पैसे और कहा था इसे मेरे अकाउंट में जमा करवा देना। वो फ्रेंड जो था इसका पैसा लेके भाग गया। जब पैसा लेके भाग गया तो इसने किस पे केस किया? साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इसने केस किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्ली ली कि भाई वो पर्सन हमारा जो था वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने उसको पूरे 24 घंटे के लिए काम करने के लिए नहीं रखा था, हमने उसको रखा था 9 to 5 के लिए। हाँ, अगर 9 to 5 के बीच में काउंटर पे आके आप ऐसा करते हो बैंक के अंदर, अगर वो होता तो जो है हम उसको लायबिल होते। लेकिन ये जो आपने दिया है पैसा, ये आपने अपने पर्सनल रिलेशंस की वजह से दिया है। तो इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि ये जो एक्ट था ये आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, फ्रॉड का ही ये केस था, इसलिए इसमें नॉट लायबिल किया गया। थर्ड केस आता है हैमलिन वर्सेस हाउस्टन एंड कंपनी। थर्ड केस इज हैमलिन वर्सेस हाउस्टन एंड कंपनी। ये केस भी एक फ्रॉड का ही केस है जो पार्टनर्स के बीच में हुआ था। इसमें एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया था, इसके लिए बाकी सभी पार्टनर्स को लायबिल बताया गया था और यही कहा गया था कि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या वी कैन से द एक्टिविटी हैज बीन डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट केस हमारा है कैसिडी वर्सेस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। कैसिडी वर्सेस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है ये हॉस्पिटल केस है। हॉस्पिटल केस है, इसमें लायबिल बनाया गया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से इंजर्ड हुई थी पार्टी और उसने हॉस्पिटल के ऊपर केस फाइल किया तो लायबिल हुआ। इसका मतलब जो भी एक्ट था वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना गया और कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के केस में जो डिफेंडेंट थे उनको लायबिल बनाया गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट केस है मर्सी डॉक्स वर्सेस हार्बर बोर्ड। मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉगिंस एंड ग्रिफिथ्स लिवरपूल कंपनी। दिस केस is related to lending a servant to another person. We have discussed कि अगर कोई पर्सन किसी सर्वेंट को उधार दे देता है, किसी दूसरे के सर्वेंट को कोई दूसरा पर्सन ले आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो पुराने लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि किसके कंट्रोल में है, वो चीजों को कंट्रोल कौन कर सकता है और तुरंत डायरेक्शन देने की पोजीशन में कौन है। तो लेकिन अब ये एक फैक्ट का हो जाएगा इशू कि क्या वो कंट्रोल करने की पोजीशन में था या नहीं था, या वो काम जो है वो क्या कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था। यहां पे क्या हुआ था, जो बहुत लीडिंग केस है ये मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉगिंस एंड ग्रिफिथ। इसमें क्या था कि एक कंपनी थी, वो क्रेन जो है ये किराए पे देती थी, साथ में ड्राइवर भी देती थी और जो ड्राइवर होते थे वो बहुत ही एक्सपर्ट होते थे। अब इस केस में जब इन्होंने क्रेन उधार ले ली, मतलब रेंट पे ली, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, किसी पर्सन को इंजरी हो गई या उसने क्या किया, केस फाइल किया। अब ये क्या चाह रहा था, जिसने किराए पे ली है, ठीक है,
उसके ऊपर ये केस फाइल करना चाहा इन्होंने, और ये चाह रहा था कि उसकी लायबिलिटी इंपोज कर दी जाए। और लायबिलिटी उसकी तभी इंपोज की जा सकती थी जब जो क्रेन का ड्राइवर था वो उसका सर्वेंट हो जाता, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता। अब जब भी कोई सर्वेंट लैंडिंग पे आता है तो ये देखा जाता है कि क्या वास्तव में ये उसके कंट्रोल में था। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब क्रेन चलाने के लिए, एक तो क्रेन को हर आदमी नहीं चला सकता है, अब क्रेन को चलाने के लिए जो ड्राइवर है वो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, और ये कंपनी इतना ज्यादा पैसा इसीलिए चार्ज करती है क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर रखते हैं। अब मान लीजिए जो बंदा अपने घर पे लेके जाएगा किसी भी काम के लिए इस क्रेन को, तो वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि उस ड्राइवर को डायरेक्शन दे पाए कि ऐसे नहीं ऐसे चलाओ। हाँ, वो ये तो बता सकता है कि आप क्या करो, इस काम को कर दो, अब उसको ये तो समझा नहीं सकता है। तो कोर्ट ने यही कहा। केस किस पे हो गया? लैंडिंग अ सर्वेंट टू अनदर पर्सन। अब देखिए इसमें क्या था, रियल ऑनर वाज हेल्ड लायबल। जो रियल ऑनर था, यानी कि जो इस कंपनी का ऑनर था, वो लायबल बनाया गया, लेकिन जो बंदा इस क्रेन को लेके आया था वो लायबल नहीं बनाया गया। ठीक, इसी टॉपिक पे नेक्स्ट केस हमारा है हल वर्सेस लीज। हल वर्सेस लीज और मर्सीडॉज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केस नंबर 5+6, ये दोनों ही केस हमारे किस पॉइंट पे है? लैंडिंग अ सर्वेंट टू अनदर पर्सन। अब इस केस में क्या हुआ था हल वर्सेस लीज में? यहां पे एक कंपनी थी जो नर्स अवेलेबल करवाती थी। अगर किसी को भी घर में कोई नर्स चाहिए तो वो बाहर से जाके नर्स को ले आते थे, ये उसका पेमेंट लेते थे। अब नर्स जब ये ले आए हैं तो एक पर्सन क्या था, किसी नर्स को अपने घर पे ले आया 2-3 महीने के लिए। रोज वो क्या करती थी, पूरे दिन घर पे रहती थी, काम करती थी। जो मालिक था वो उसको रोज बताता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। उस नर्स को सब चीजें धीरे धीरे वो बता देता था कि पानी कहाँ गर्म करना है, कहाँ से लाना है, किचन कहाँ, ये सब चीजें उन्होंने बता दी। यहां पे भी यही हुआ कि इस केस में जो नर्स थी, इसने क्या किया, इसने गर्म पानी गिरा दिया जो बीमार लेडी थी, उससे उसको काफी दिक्कत हुई। केस फाइल किया, तो केस फाइल करने में यही देखा इसने कि जो कंपनी है, ठीक है, जिसने नर्स को भेजा है, उसको लायबल बनाया जाए। लेकिन हमने कहा ना कि हर केस के फैक्ट जो है वो अलग अलग करेंगे, कि अब हमारे सामने इतने फैक्ट नहीं होते कि कोर्ट के सामने क्या फैक्ट आया, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ वाज हेल्ड लायबल नॉट रियल ऑनर। ठीक, यहां पे नर्स का मतलब ये नर्स वाला केस हो गया। अब यहां पे क्या था कि जो वो पर्सन था, प्लेंटिफ कौन होगा, जो इंजर्ड हुआ, तो उसने क्या किया, उसने रियल ऑनर जो था, कंपनी थी नर्स जो अवेलेबल कराती थी, उसके ऊपर केस फाइल किया। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लायबल नहीं है, क्योंकि वो नर्स जो है वो अपनी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने से आपके यहाँ काम कर रही थी, 3-4 महीने से आप सब चीज अपने हिसाब से देख के करवा रहे थे, तो यहाँ पे लायबिलिटी किसकी होगी, मालिक की नहीं होगी। अब देखिए ये टॉर्ट के केस है, इसमें कहीं कहीं पे आपके मन में डाउट भी आ सकता है कि वहां पे लायबिलिटी हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। अब फैक्ट से क्यों, हमें केवल इतना लिखना है कि इस केस में रियल ऑनर को लायबल नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि ये उसके कंट्रोल में नहीं थी। डिपेंड क्या रहेगा, कंट्रोल के ऊपर। इसके बाद आ जाइए, अगर 7th केस आपका है विलियम्स वर्सेस जोन्स, नेग्लिजेंस पे केस है, इसमें भी नॉट लायबल किया गया था। विलियम वर्सेस जोन्स जो है कारपेंटर वाला केस है, इसमें क्या हुआ, चाहे आप यहाँ पे कहीं भी लिख लीजिएगा। कारपेंटर वाला केस ये है। कारपेंटर वाले केस में क्या होता है, कोई ये कारपेंटर थे, ये उसी के घर में कोई लेके गया इनको, वहां ये काम कर रहा था, वहां उससे कुछ पाइप में आग लग गई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, जो इसका कंपनी थी उसको लायबल नहीं माना। नेग्लिजेंस के केस में लायबल क्यों नहीं माना, क्योंकि इनका यही कहना था कि ये जो है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं किया गया है। यहीं पे सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड, ये भी नेग्लिजेंस के ऊपर केस है, और यहां पे डिफेंडेंट को लायबल बनाया गया था। इसके बाद लिम्पस वर्सेस लंदन जर्नल ओमनिबस कंपनी, ये हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन।
अगर कोई पर्सन किसी को एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर देता है किसी काम को करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन में जो मास्टर है उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। क्यों लायबिलिटी बनी रहेगी? वरना तो हर पर्सन क्या करेगा, प्रोहिबिट करके और अपने आप को बचा लेगा। क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया था, हर आदमी जो है वो अपने ड्राइवर से यही कह के भेजता है, अपने सर्वेंट से यही कहेगा भाई अच्छे से काम करना, किसी का नुकसान न करना। ये कौन कहता है जाके गाड़ी लड़ा दो जाके? लेकिन यहां भी अलग अलग केस के हिसाब से डिसीजन आए हैं। जैसे एक केस हमारा था लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी। इसमें क्या हुआ था, इसने अपने ड्राइवर से कह दिया था भाई देखो गाड़ी संभाल के चलाना, हल्के के चलाना, किसी से रेस ना लड़ाना और ना बहुत तेज दौड़ाना गाड़ी। इवन देन इसने क्या किया था, रेस लड़ाई जाके एक को नुकसान कर दिया, इसको लाइबिल बनाया गया। देखिए क्या लिखा है, लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी, लाइबिल बनाया गया, रेस वाला केस है। ठीक, अब दूसरा केस इसी टॉपिक पे, ट्विन वर्सेस विंस एक्सप्रेस लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, इसमें नॉट लाइबिल हेल्ड किया गया और कोर्ट ने क्या कहा कि लिफ्ट आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिफ्ट का मतलब क्या है, इस केस में जैसे एक काम के लिए गाड़ी को रखा गया, मालिक ने दो चीजें पेस्ट करवा दी गाड़ी के ऊपर ही। क्या क्या? पहली चीज तो इन्होंने कहा कि देखिए यहां पे आप ड्राइवर के लिए कहता कि किसी भी थर्ड पर्सन को किसी भी कीमत पे लिफ्ट नहीं देंगे। एक चीज हो गई। दूसरा नोटिस उसने ये लगा दिया कि कोई भी बाहर का आदमी इस गाड़ी में ना बैठे और अगर वो बैठता है कोई इंजरी हो जाती है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो भाई इन्हें ड्राइवर ने क्या किया, ये गए और इन्होंने कुछ लोगों को लिफ्ट पे बैठा लिया, लिफ्ट दी उसको। तो लिफ्ट देने के बाद एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसके घर वालों ने केस फाइल किया। तो केस फाइल करने के बाद कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, यहाँ पे ये बंदा लायबिल नहीं है क्योंकि ये काम जो है वो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसने लिफ्ट के लिए मना किया था, अब जैसे उससे पहले वाले केस में उसने कहा कि तेज ना चलाना, लेकिन अगर वो तेज चला रहा है तो वो है तो एम्प्लॉयमेंट ही, यहाँ पे आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोर्ट ने कह दिया। इसके अलावा एक डॉक्ट्रिन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आज की डेट में उस डॉक्ट्रिन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो एबॉलिश हो गई है। इवन देन किस केस में वो डॉक्ट्रिन आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, उस डॉक्ट्रिन के बारे में शॉर्ट नोट आते हैं कई। जैसे कहा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट एंड और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट जो था इस पे लीडिंग केस है प्रिस्टले वर्सेस फॉलर का। प्रिस्टले वर्सेस फॉलर किस पे है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें इन्होंने कहा था अगर एक सेम ऑनर है, जैसे मान लीजिए कोई एक एक्स ऑनर है और एक्स ऑनर के यहां दो सर्वेंट काम कर रहे हैं, वाई एंड जेड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट ये कहता था कि बाई की किसी काम से अगर जेड को चोट लग जाए या जेड के किसी काम से अगर बाई को चोट लग जाए तो इन दोनों ही की किसी भी इंजरी के लिए एक्स को लायबिल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अगर दो पर्सन कॉमन एम्प्लॉयमेंट में हैं तो उनकी किसी भी इंजरी के लिए उनके ऑनर को लायबिल नहीं ठहराया जा सकता। ये केस था प्रिस्टले वर्सेस फॉलर का। तो इसमें यही हुआ था कि एक को चोट आई तो उसने क्या किया, मालिक के ऊपर केस फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कॉमन एम्प्लॉयमेंट है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये बंदा लायबिल नहीं है, यानी कि ओनर को लायबिल नहीं माना गया था। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये केवल हिस्ट्री हो गई है, आज की डेट में ये सब अबॉलिश हो गया है। तो आज की पोजीशन क्या है, नाउ अबॉलिश्ड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। आज की डेट में ना तो ये इंडिया में प्रिवेल करता है ना ही ये इंग्लैंड में प्रिवेल करता है। ये इसलिए बताना जरूरी हो गया था क्योंकि आप देखेंगे कि वाइकेरियस लायबिलिटी पे सीरीज ऑफ केस लॉज है, तो कम से कम नहीं तो हर टॉपिक पे इतने आप केस तैयार रखिए। जैसे हम लोगों ने जब देखा था कि लायबिलिटी ऑफ मास्टर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो लायबिलिटी ऑफ व्हीकल ऑनर हमने देखा,
व्हीकल ऑनर की आपको पता है क्या पोजीशन है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। या हॉस्पिटल केस हो गया तो हॉस्पिटल केस पे भी एक केस हमारे पास आ गया। लैंडिंग अ सर्वेंट टू अनदर पर्सन हो गया, या कैजुअल डेलीगेशन ऑफ ओनरशिप हो गया, अथॉरिटी हो गया। कि अगर जरूरी नहीं है कि ये जो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है ये काफी टाइम के लिए हो, ये कुछ समय के लिए हो सकता है। जैसे कैजुअली अगर कोई अपने फ्रेंड को गाड़ी दे देता है कि चलो अच्छा थोड़ी दूर तक तुम चलाओ, और उस बीच अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फ्रेंड सर्वेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, ये मास्टर कंसीडर कर लिया जाएगा, और वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वाइकेरियस लायबिलिटी में। एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जो वाइकेरियस लायबिलिटी है ये रिलेशनशिप की वजह से होती है। 3 रिलेशनशिप भी हम लोगों ने देख लिए थे, प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, एंड मास्टर एंड सर्वेंट। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस इन द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, दैट हु इज सर्वेंट, कि किस पर्सन को हम सर्वेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, डायरेक्शन और कंट्रोल का, कि अ पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ सर्वेंट इफ दैट पर्सन इज एक्टिंग विद इन द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ओनर और अनदर पर्सन। कि अगर कोई पर्सन उसके डायरेक्शन में, उसके कंट्रोल में काम कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, सर्वेंट कहेंगे। क्योंकि सर्वेंट वो होता है जिसको बताया जाता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसी के साथ एक दूसरा टर्म हम लोगों ने देखा था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जिसको केवल ये बताया जाता है व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं बताया जाता है। अच्छा, यहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अ पर्सन मे नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्चर्स एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, but a person may be held liable for the tortious act of servant. So question arises, what is the difference between servant and independent contractor? तो इन, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर अपना ड्राइवर हम लेके जा रहे हैं वो एक्सीडेंट कर देता है तो हम लाइबिल हैं, लेकिन अगर हम कोई टैक्सी करते हैं तो उसके लिए लाइबिल नहीं है। लेकिन टैक्सी या ओला के केस में भी क्या होगा, वाइकेरियस लायबिलिटी लग जाएगा कि हम तो लायबिल नहीं है, मतलब पैसेंजर लायबिल नहीं है, लेकिन उस ड्राइवर के एक्ट के लिए जो उसका मालिक होगा वो लायबिल हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओला या टैक्सी के केस में वाइकेरियस लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी, पैसेंजर के साथ एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके बीच में मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है। यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स आपको एक दो बता दिए थे कि देयर आर सम एक्सेप्शंस इन विच अ पर्सन में बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो उसमें एक दो पॉइंट्स और हैं, वो आप और देख लीजिए जरा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। पहले तो हमने आपको बताया था अगर वो ऑथोराइज कर देता है किसी भी इलीगल एक्ट के,
अगर वो किसी भी इलीगल एक्ट को करने के लिए अथोराइज है एंड रेटिफाइड, कि कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए उससे कहता है, या एंड नहीं बल्कि यहां पे होना चाहिए और रेटिफाई करना। रेटिफाई का मतलब होता है अनुसमर्थन कर देना। जैसे एक तो हमने कहा कि जाओ उसकी टांगे तोड़ दो, तो ये क्या किया, हमने किसी को इलीगल काम करने के लिए ऑथराइज कर दिया, जाओ टांगे तोड़ के आओ उसकी। एक हमने पहले से नहीं कहा कि जाओ इसकी टांगे तोड़ दो, अब वो खुद आया, बोले हम पैसे लेने गए थे और हमने टांगे तोड़ दी उसकी, तो हमने कह दिया बहुत अच्छा किया तुमने टांगे तोड़ दी। अब क्या है कि ऑथराइज नहीं किया हमने, लेकिन बाद में वो जो काम करके आया है उसको हमने क्या किया, रेटिफाई कर दिया, अपना समर्थन दे दिया उसको। तो या तो ऑथराइज करता है कोई भी इलीगल काम करने के लिए, या रेटिफाई कर देता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। तो इस केस में जो ओनर होगा, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से जो भी ये काम करवा रहा होगा, ओनर जो होगा वो लायबिल बनाया जा सकता है। दूसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। तो अगर कोई भी, क्योंकि देखिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उधर भी हमने देखा था फॉल्ट थ्योरी और नो फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी क्या होता है कि आप कोई गलती कर रहे हैं तब आपको लायबिल बनाया जाएगा, और नो फॉल्ट थ्योरी क्या होती है, यू मे बी हैड लायबिल विदाउट एनी फॉल्ट, कि आपने कोई फॉल्ट नहीं किया है, इवन देन आपको लायबिल बनाया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट है, कठोर दायित्व का सिद्धांत है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसको लायबिल बनाया जा सकता है। आप देखेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में लायबिल बनाया जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है डेंजरस कॉज्ड ऑन। डेंजर्स on or near the highway। डेंजर्स कॉज्ड ऑन और नियर द हाईवे। अगर कोई जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है ये ऐसा कोई डेंजर कॉज करता है हाईवे पे या हाईवे के पास में, तो इस कंडीशन में भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी टॉर्चर्स एक्ट के लिए जो ओनर होगा उसको लायबिल बनाया जाएगा। यानी पहला ऑथराइज या रेटिफाई कर देता है किसी इलीगल एक्ट को, दूसरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में, तीसरा कोई भी डेंजर कॉज किया है कहां पे, हाईवे पे या हाईवे के पास में। फोर्थ कहता है न्यूसेंस इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल। nuisance of nuisance in the form of withdrawal of support of support from neighbors land। अब मान लीजिए क्या है कि न्यूसेंस इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम नाइबर्स लैंड, कि काम आप करवा रहे हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, ऐसी कोई भी सपोर्ट जो पड़ोसी की जमीन पे लगी हुई थी वो हटा दी उसने, तो ऐसी केस में भी ये क्या होगा, ये न्यूसेंस की है। तो आगे हम देखेंगे न्यूसेंस, ठीक है। तो ये कौन सा टॉर्ट माना जाएगा, ये न्यूसेंस माना जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी न्यूसेंस इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम नाइबर्स लैंड, कि अगर नाइबर्स लैंड से आपने कोई भी सपोर्ट हटाया है, विड्रॉल मतलब हटा दिया है, तो इस केस में भी आपको लायबिल बना दिया जाएगा। और लास्ट एक्सेप्शन है रिजल्ट्स इन द ब्रीच ऑफ अ
duties to his servant. लास्ट है कि रिजल्ट्स इन द ब्रीच ऑफ द मास्टर्स कॉमन लॉ ड्यूटीज टू हिज सर्वेंट। अगर मास्टर की कॉमन लॉ में अगर कोई भी ड्यूटी है सर्वेंट के लिए, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होगा उसमें भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे काम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से आप करवा रहे हैं, अब कॉमन लॉ जो इंग्लैंड में है उसमें अगर कोई, क्योंकि इंग्लैंड से पूरे लिए गया टॉर्ट हमारा, क्योंकि ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, जजमेंट लॉ है, तो इन्होंने कहा कि कॉमन लॉ में कोई भी ड्यूटी अगर सर्वेंट की तरफ है उसमें अगर ब्रीच होती है तो उस केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी लायबल बनाया जा सकता है। तो ये 5 एक्सेप्शंस हैं इन विच अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड फॉर द tortious act of independent contractor the owner of independent contractor may be held liable, but these are exceptions and the general rule is for the act of servant the owner may be held liable, but for the tortious act of independent contractor owner will not be held liable। लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शंस है। तो ये आपका जो है वो वाइकेरियस लायबिलिटी या पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें आपका मिस हो रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, प्रिस्टले वर्सेस फाउलर का केस आप देख लीजिएगा। बाकी ये 10-11 केस जो हमने आपको बताए हैं ये मैच करने को भी खूब आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा केस जो है वो वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेड नहीं है। 4 केस दे देंगे, 3 इसमें से दे देंगे, 1 कोई बाहर का दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ठीक। तो ये केस तैयार कर लीजिएगा, ये तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका वाइकेरियस लायबिलिटी अब कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो वाइकेरियस लायबिलिटी अगेंस्ट द स्टेट होगा। ये तो हमने इंडिविजुअल की बात कर ली कि इंडिविजुअल के किसी भी एक्ट के लिए उसके मालिक को लायबल बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या स्टेट के जो कर्मचारी हैं वो कोई टॉर्चर्स एक्ट करते हैं तो क्या उसके लिए उनका मालिक कौन हुआ, स्टेट हुआ, तो क्या स्टेट को उसके लिए लायबल बनाए, देखेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और अगर चैनल लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।